Okay, fine. So again, welcome to the class. Today I am basically discussing Vishy Anand and his the his fully autobiography. We'll discuss today in just 9 slides. Okay, in just 9 slides, we will complete the Vishy Anand life story. Okay, so this is a Sir, I can't hear you. yeah. You can't hear me now. Am I audible? Yes, now you're audible. Okay, fine. So, if you want to introduce yourself, you can introduce yourself to the class if you are comfortable. Okay? Because we will start at 7 o'clock. So now should I introduce? Yeah, sure. Okay, so good evening. My name is Shania Shailendra Shelkar. I am state level chess champion and I'm from Maharashtra. Okay, what are your hobbies other than chess or nothing? Sir, I like to study. Okay, study. Okay, very good. In which class you are? Sir, I'm in ninth standard. Ninth standard. It is a very difficult standard. Okay. Okay. Yes, now only I have come back from my tournament. Okay. Fine. Okay. Fine. Thank you. Okay, now I'm introducing myself. I think Shania is very familiar with my introduction always. But yes, I am the national champion. I'm a national gold medalist and I've trained more than 5,000 students. Every year I used to train them. And in past 2 years, I have trained more than 50,000 students in offline seminars also. Like offline seminars, we can say like Park, ठीक है, and grounds, or we can say a proper function also like 29 state ceremony. I have been invited as a chief speaker. ठीक है. So and I am the national pride awarder to bring the awareness on the chess. ठीक है. Now, so anyone want to speak about Vishy Anand and share his thoughts about Vishy Anand, or do you want to like have any queries, or you want okay how you gain the interest, or like how Vishy Anand evolve, or why today's topic is Vishy Anand, because there are more than 10,000 champions. ठीक है. But why Vishy Anand we are taking in today's, because I made the slide for Vishy Anand only, but why? So I'm explaining my reason. It is because Vishy Anand is the first Grandmaster of India, or we can say Vishy Anand is one of the most experienced Grandmaster. Okay. Also, I can say कि Vishy Anand have okay Ansh, hello. Hello, sir. Okay. So Vishy Anand is the मोस्ट एक्सपीरियंस, और अगर मैं ये बोलूं कि विषय आनंद जी की वजह से ही गेम अपना स्टैब्लिश हुआ है, तो यस इट इज नॉट द रॉन्ग थिंग. व्हाई? बिकॉज मैनी आप देखेंगे मैनी पीपल, मैनी ग्रैंड मास्टर्स इन इंडिया कैसे आए? फर्स्ट ऑफ ऑल विषय आनंद आए, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने अर्न किया चेस में. ठीक है. पहले लोग सोचते थे अरे अभी क्या मतलब हम अर्न कैसे कर लेंगे. ठीक है. चेस तो एक छोटी सी चीज है. इट इज लाइक अ गेम. बट यस आई हैव आल्सो इंट्रोड्यूस अ करियर सेशन आल्सो, है ना. आज करियर सेशन भी हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था व्हाट आर द करियर्स यू कैन परस्यू इन चेस लाइफ. तो देर आर मतलब जो मेन अवेयरनेस फैली थी वो द मेन गाइड इज विषय आनंद. उसकी वजह से ही, या उनकी वजह से ही आई कैन से कि हमारी लाइफ में या फिर चेस लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज इवोल्यूशन हुआ. नाउ Sir, विषय from how आनंद many इसका इंडियन. years ओके. Vishy- सॉरी. Sir, from how many years Vishy Anand is playing chess?
From how many years Vishy Anand is playing chess? This is your question, huh? Yes. Okay. See, actually, when he was 6 year old, he started playing in the tournaments. I don't know. I'm not familiar with when he started his journey. But yes, when he's 6 years old, he have started playing in a tournaments, not rated tournaments and local tournament. He start playing, and now he's I think Vishy Anand is 54. ठीक है? So yeah, he is 54. I have checked on the Google. Yeah, and I was right. He started playing in five when he was 5 years old. Okay, but as per my experience, when he started playing at 6 year at professionally. ठीक है, आप टूर्नामेंट्स कब जाते हो? जब आपको प्रॉपर you trust yourself. ठीक है, Guidance. कि yes I will experience something in the tournament. ठीक है, now अब उसके बाद ये सब हुआ। अब जैसे ही आप नया काम स्टार्ट करते हो तो योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी फोर्सफुल कि अब जैसे मैं बोलूंगा कि मैं ओके व्हाट इज द स्विमिंग हो गई। ठीक है, इंडिया में अभी इतना अच्छा स्विमिंग का ट्रेंड नहीं है फॉर एग्जांपल। तो मैं एक स्विमर बन जाऊं फॉर एग्जांपल, और मैं बहुत अच्छे 3-4 टूर्नामेंट्स में मैं गोल्ड मेडल ले आऊं, चैंपियन बन जाऊं। उसके बाद मैं अपनी मदर से बोलूं कि कैन आई परस्यू इट इज इन करियर। तो क्या आपको लगता है कि एक बंदा बन गया उसका हम एग्जाम्पल तो दे देते हैं, बट अगर आप ही वो पहले बनते हो, ठीक है, इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन, तो आपको कितनी परेशानी होगी उसे, लाइक स्ट्रगलिंग विद योर पेरेंट्स, ठीक है, स्ट्रगलिंग विद द सोसाइटी, है ना? क्योंकि इससे पहले 1969 में वो बॉर्न हुए थे, उससे पहले तो कोई खेलता ही नहीं था इंडिया में चेस। ठीक है, 1970 में आप मान लो कि कोई बहुत कम लोग खेलते थे चेस, या फिर चेस एक लोकल गेम था जो हम रात को खेला करते थे, दादा परदादा खेला करते थे, या फिर पापा मम्मी ऐसे हमारे साथ खेला करते थे। ठीक है, बट नाउ इट इज बीन प्रोफेशनली, बहुत प्रोफेशनल हो गया। अब तो दिख भी रहा है पेरेंट्स को, पहले नहीं दिखता था। आज से आप मान लो 50 इयर्स पहले कुछ भी नहीं था, चेस का ट्रेंड कुछ भी नहीं था। अभी तो मैं स्विमिंग का भी मैंने बहुत गंदा एग्जांपल लिया है, स्विमिंग में भी बहुत सारे चैंपियंस हैं, बट अभी मुझे कोई गेम ऐसा पता नहीं है। ठीक है, लाइक आप मान लो कैरम हो गया, ठीक है, ऐसे। तो अभी से मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आए हैं, आई डोंट नो, बिकॉज टुडे इज रिपब्लिक डे ऑल्सो, तो मैनी स्टूडेंट्स आर बिजी। I also got many messages, sir, I can't attend today's class. Kindly change the timings. But yes, that time I am very sorry, because all the posters and timings are ready. And many players today are it's Republic Day, so there are many tournaments also. Now, second slide. Early life and introduction to chess. It is only for Vishayanand. Okay. Okay. Can you see this image? This small image. Yes, sir. This is the small clock. Yes. Please unmute your mic. Okay. This is the small clock, and it was imported from USA or foreign. ठीक है, and it cost around 8,000 rupees in today's time. अभी तो हमें DGT की बहुत अच्छी क्लॉक मिल जाती है इन 4,000 रुपीज, वो भी एक्सपोर्ट होती है वैसे। बट एट दैट टाइम दिस इज ओनली द फर्स्ट क्लॉक कंपनी, एंड ऐसी छोटी सी क्लॉक होती थी, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती थी। तो चेस में अगर आपको अपना करियर बनाना भी है तो आपको पहले चेस किट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टूर्नामेंट जाना पड़ेगा, उसमें ट्रॉफी लेकर आनी पड़ेगी, उसमें नेशनल लेवल खेलना पड़ेगा, नेशनल लेवल में ट्रॉफी लानी पड़ेगी, उसके बाद इंटरनेशनल में फिडे रेटिंग के लिए ट्रॉफी लानी पड़ेगी आपको। उसके लिए भी बहुत चार्ज करते हैं फिडे प्लेयर्स। फिडे उसके बाद अच्छी कोचिंग भी लेनी पड़ेगी फिडे प्लेयर से, फिडे रेटेड प्लेयर से। ठीक है, तो आप कितना मान लो 50,000 ईयर आपको एटलीस्ट, अगर आप छोटे से भी प्लेयर हो तो खर्चा आ जाता है। ठीक है, टूर्नामेंट्स आप खेलते हो, आप कोचिंग लेते हो,
तो इतना सब करके भी 50,000 अ ईयर एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा वी कैन से लाइक दिस नाउ। चाइल्डहुड पैशन from a young age, Anand. Okay, I have already told 6 years, and I am okay 6 years. Anand displayed an attitude came in chess, showing deep interest and dedication in his early life. अच्छा, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि शुरू से अगर आप चेस खेलते हो तो उसमें बहुत डेडिकेट बन जाते हो आप? Why? Now you can speak. कि मतलब आपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि जो स्टार्टिंग करना है आप करो, स्टार्टिंग से करो। लाइक देर इज नो एज, वो तो पता ही है सबको। बट ऐसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से अपना जो करियर है आपको उसमें फोकस करो। तो अभी क्यों कहते हैं? बिकॉज चाइल्डहुड पैशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्डहुड में आपके पास बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। मेमोरी इन द सेंस यू हैव अ प्रॉपर, मतलब मैं बोलूंगा कि आप समझ पाते हो उस गेम को, या फिर किसी भी चीज को आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो इन इन योर अर्ली इयर्स। लाइक आई कैन से 3 to 18, मैक्सिमम 18। ठीक है, उसके बाद फिर आपका खत्म ही हो जाता है इंटरेस्ट। उसके बाद आपका करियर आ गया। ठीक है, करियर पैशन आ गया एंड ये सब आ जाता है। तो फिर खत्म ही हो गया ना आपके 18 के बाद। तो जो करना है आप 18, लास्ट 18 तक ही कर सकते हो। एंड टीनेज इज अडोलेसेंस तो बहुत ही मुश्किल लाइफ होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। नाउ, तो अगर आप अडोलेसेंस में चेस भी खेल रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, और कहीं ट्यूशन भी जा रहे हो, स्कूलिंग भी कर रहे हो अपनी, तो कितना हेडेक हो जाता है ना। और इफ यू स्पेशली इफ यू आर इन 8 9 10 11 12, ये 5 इयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के वहां पे। और कभी जब आपका अच्छा रहता है, देखो एक एक मैं रूल और बताता हूँ। जब भी आपका अच्छा रहेगा तब आपको लोग तारीफ करेंगे, ठीक है। और मैं एक बात और बताऊंगा यहाँ पे, स्ट्रगल और कॉन्ग्रेचुलेशन या सपोर्ट आई विल से। स्ट्रगल सिर्फ आपको एक बंदा देता है, या एक दो बंदे आपको सपोर्ट करते हैं आपकी स्ट्रगल में। बट सपोर्ट सपोर्ट आई विल से कि जैसे विराट कोहली था, ठीक है, उसकी मदर हमेशा उसे बहुत सपोर्ट करती थी, या मैडम वी कैन से बहुत सपोर्ट करती थी। तो सिर्फ एक दो लोग ही उन्हें सपोर्ट करते थे। बट अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे सपोर्ट में, अगर आप अभी जाओगे विराट कोहली के, तो सभी फैन है इंडिया में। तो आपको ये समझना आना चाहिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपको रियली में सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैं भी अपनी पोस्ट डालता हूँ, मेरे पास कम से कम 100+ मैसेजेस आ जाते हैं। वाओ, इट इज अ फ्री वर्कशॉप, वेरी गुड। और अगर मैं कुछ लॉस हो जाऊंगा मेरा, या आई फेल इन माई एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वही सोसाइटी क्या बोलेगी, चेस में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अगर जीते हो तभी आपको सपोर्ट मिलता है। नाउ, इंट्रोडक्शन टू द गेम। Anand, okay, do you know who is the Vishy Anand coach? Anyone? Now don't Google it. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वहां पे कोचिंग नहीं होती, बिकॉज ही इज द फर्स्टली न्यूली प्लेयर, है ना। तो उससे पहले तो कोई चेस का ट्रेंड ही नहीं था। तो कोच कौन होगा विषय आनंद का? ओके, यस, यू हैव रेज योर हैंड। यस, यू कैन। ओके, आई थिंक योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आई एम स्पीकिंग, हिज मदर वॉज हिज कोच। हर मदर, ओके, हर मदर वॉज हर कोच, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर उनकी कोच थी, क्योंकि उनकी मदर ने उनके फादर से सीखा था, ग्रैंडफादर से सीखा था। तो ऐसे ऐसे बहुत एंशियंट गेम है चेस। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर ने उन्हें
सपोर्ट किया कि ऐसे चलते हैं। बेसिक्स तो पेरेंट्स क्लियर करवा ही देते हैं, बट उन्हें बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने, उनकी मदर को। रात भर वो बैठती थी, सिखाती थी अपने बेटे को, विषयानंद को सिखाती थी उनकी मदर। तो आप देख सकते हो कि उनके पेरेंट्स का भी क्या डेडिकेशन था। नाउ आनंद इन पिक्चर्स बिगन विद हिज मदर। ठीक है, मदर हु इंट्रोड्यूस हिम टू द गेम। तो मैंने वही बताया आपको। और उनकी मदर बहुत चाहती थी कि वो एक चेस में करियर बनाए, बट अगेन सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो वो हमेशा उनके इंटरव्यूज में भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि माई चाइल्डहुड नॉट सो मच वेल। ठीक है, क्योंकि आई हैव बहुत लेस प्लेयर्स को एबिलिटी होती है टू फाइट विद सोसाइटी, है ना। और मैंने वही एग्जांपल दिया, अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर बन जाते हो तब सब लोग आप बोलोगे कि वेरी गुड स्टेटस पे लगा देते हो आप। तो आ जाता है ना वेरी गुड, यस चैम्प, ऐसे करके मैसेज आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे। बट वहीं अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो तो चेस में इतना इंटरेस्ट क्यों दिया था आपने, ये आ जाता है मैसेज, या पेरेंट्स से भी यही सुनने को मिल जाता है। नाउ फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंस टूर्नामेंट तो उस टाइम पे नहीं होते हैं, तो कैसे मतलब कैन यू एनीवन से कि कैसे मतलब आप टूर्नामेंट्स नहीं होता था तो कैसे सीखा होगा विद रियल लाइफ प्लेयर्स। अब आप उनकी स्ट्रगल समझ पा रहे होंगे, है ना। हमारे पास क्या कहते हैं, वी हैव मनी, और उससे हम टूर्नामेंट्स में जा सकते हैं, प्लेयर से मिल सकते हैं। और ऐसे कर से उनके फ्रेंडशिप भी बन जाते हैं, उनकी आईडी भी ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। ठीक है। नाउ एक जीएम प्रवीण था। He was okay. फिशी आनंद was only 16 years old. ठीक है, जब वो इंडिया नंबर वन बने थे, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था। ओनली 16 ईयर ओल्ड। और अभी एवरेज 16 प्लेयर क्या कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सिस्टम। नाउ जुलाई आई थिंक 1986 में उन्होंने ही बिगन इंडिया नंबर वन विथ उन्होंने जीएम प्रवीण को पीछे छोड़ दिया था एज पर द फिडे रेटिंग। और उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेला था, क्योंकि इंडिया में इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते थे। ठीक है, फॉर फिडे फॉर फिडे इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते थे इंडिया में। होते थे बट बहुत कम होते थे। तो उन्होंने अपनी वर्ल्ड बिलेट्स कप जीता था 2000 में, आपको पता होगा। तो और उन्हें खेल रत्न अवार्ड भी मिला है इन 1991। ठीक है। तो ये सब उन्होंने अपनी दूसरी कंट्रीज में जाके खेला था। फॉर एग्जाम्पल he played some tournaments in India, Nepal, इन सब में उन्होंने स्टार्टिंग में खेला था अपने टूर्नामेंट्स ना। फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस राइस। ओके, दिस इज द सम राइस सीन। ठीक है, कैसे उन्होंने अर्निंग करी, नेशनल टाइटल्स मिल गए, रोल मॉडल। अब देखो विषय आनंद कितने एड्स कर रहे हैं, है ना। विषय आनंद सबवे की उन्होंने ऐड चलाई है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अभी अवेयर नहीं है। आई विल शो यू। तो अर्निंग कैसे हुई थी उनकी। तो आनंद की जो एक्सपेक्टेशनल परफॉर्मेंस थी नेशनल चेस इवेंट, क्विकली बहुत अटेंशन मिला उन्हें इंडियन चेस कम्युनिटी से। ठीक है। और ऑल इंडियन चेस फेडरेशन ने उन्होंने एक राइजिंग स्टार का एक टाइटल दिया। उसके बाद उन्हें बहुत सारे नेशनल टाइटल्स मिले, जैसे मैंने आपको अवार्ड्स के नाम बताए भी हैं अभी। उसके बाद उन्होंने एक रोल मॉडल, उसके बाद वो न्यू जनरेशन टैलेंट को बहुत उन्होंने स्पीकिंग क्लासेस ली हैं, उन्होंने गाइड किया है विद चेस बेस इंडिया के साथ, बहुत मीडिया प्रमोशन भी करी है ना, अपने इंटरव्यूज दिए हैं, ताकि यू कैन बी मोटिवेट एंड यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन चेस। उसके बाद इंटरनेशनल सक्सेस टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। आपको हमेशा पता होगा कि 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं उन्हें।
विद दिस नेम उन्हें हम पुकारते हैं। नाउ तो इंटरनेशनल सक्सेस उन्हें 5 टाइम्स उन्होंने एट द एज ऑफ 18 उन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल गया था। और ये एक बहुत ही यंगेस्ट एज थी। अभी तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद 7 विक्ट्रीज उन्होंने इंटरनेशनली करी थी। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में गए थे। ग्लोबल स्टेज पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नाउ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में उन्होंने बहुत सारे अपने टाइटल्स डिफेंड किए थे। और उन्होंने चैंपियन वो बन गए थे इन 2000। ये डेट याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी लेगेसी बचाई, मतलब बहुत बहुत कुछ स्ट्रगल भी हुआ था उनके। उसके बाद देयर आर मेनी बहुत फेमस गेम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल नोटेबल गेम्स, देयर आर मेनी। आई विल शो यू वन लिस्ट, ठीक है। नाउ contribution to Indian chess. Okay, this is the one of the most important thing. Yeah, as I told you, he have motivated most of the youth. ठीक है। He have mentor many players. He have mentor many kids. Then there are many challenges he faced in his career, tough competitors in international level, ठीक है। एंड एडवर्टाइजर्स ओवरकम, क्योंकि करप्शन भी आजकल बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे नहीं था इतना। नाउ उन्होंने जनरेशन्स को, मैंने हमेशा बोला है कि आज का हमारा टाइटल क्यों है विषय आनंद, वाई, कोई और क्यों नहीं है। क्योंकि जनरेशन्स, अ प्लेयर, आप रोल मॉडल बन जाते हो जब आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हो। और अगर मैं भी चेस एज अ करियर बोलूंगा तो मैनी पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है, यू कैन गो। बट आज आप इमेजिन करो 50 years बिफोर, क्या कोई इमेजिन कर सकता था एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत बड़ा चेस चैंपियन बन गया, ठीक है। और अगर विशी आनंद, फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो राइज ऑफ विशी आनंद, तो क्या आज इंडिया का यूथ इतना सक्सेसफुल हो पाता? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे, जैसे प्रग हो गया, गुगेश हो गया, निहल हो गया, निहाल, तो क्या वो डेवलप हो पाते अपने आइडिया से? नहीं हो पाते ना, क्योंकि दे डोंट हैव एनी रोल मॉडल, ठीक है। तो ही वॉज अ वेरी टफ पर्सन, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी फॉर बिकमिंग इंडियन ग्रैंड मास्टर्स एंड ऑल। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट बायोग्राफी, ठीक है, बहुत छोटी बायोग्राफी थी। अब एक क्विज टाइम हो गया हमारा, सम क्विज, और मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं वो इसी से होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिसे आएगा दे कैन रेज योर हैंड, ठीक है। नाउ when did Vishy Anand win his first World Chess Championship title? Don't Google it, ठीक है? Don't Google it. Okay, you can raise your hand. Okay, PV. Okay, I'm yes, speak. Hello, sir. Good evening. Year. Uh, uh, Vishy Anand isn't it was a world champion or not? My question is कि विशे आनंद was कब वो फर्स्ट चेस चैंपियन टाइटल उन्होंने गेन किया था? यस पावर। सर 2000 में। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इन 2000 he have conclude with his title। और जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा उसे ही चांस मिलेगा, फिर उसके बाद ऐसे आएंगे। चलिए, अब व्हाट डज विशी आनंद गेम प्ले स्टाइल? ये भी मैंने स्टार्टिंग Sir, में I बताया didn't था। understand the question. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज विशी आनंद गेम स्टाइल, गेम प्ले, लाइक आई एम आस्किंग यू, कैसे वो खेलते थे? एग्रेसिव खेलते थे, डिफेंसिव खेलते थे, टैक्टिकल खेलते थे, कैलकुलेशन अच्छी थी? ये सब आप बता सकते हो उनसे, ठीक है। यस।
तो आप ये सब बता सकते हो। माय क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग कि विषय आनंद का गेम प्ले स्टाइल क्या था? यस, पवर। ये शैली, यू टेल, शनाया। Attacking style. फाइटिंग स्टाइल, ओके। ओके पवर, टेल मी। उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली, कैलकुलेशन एंड टैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन एंड टैक्टिकल अप्रोच उन्होंने स्टार्ट किया था। नाउ, तो ये और उसके बाद ओके, आई एम लोअरिंग योर हैंड्स। व्हाट आर द चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, वन बाय वन ओनली, ठीक है? व्हाट आर द चाइल्डहुड स्ट्रगल्स डिड विषयानंद फेस? यस पवर। उतने प्लेयर नहीं थे भारत में, टूर्नामेंट ओके। कम होते थे। हम्म, यू कैन से कंपटीशन बहुत कम था एंड नो वन इज इन, मतलब it was a local game but Sir, none can of you repeat anyone. the question? My question is कि what is the struggle, main struggles for Vishy Anand in childhood? Sir, One answer I financial get problem. lower competition. No, he's a good middle class family. Society problem. No. Any other? Okay, raise your hand and then speak. ठीक है? Okay, some of the struggles are he is very new to chess. ठीक है? उन्हें परस्यू करना था अपना करियर पर वो कर नहीं पाए। लेटर जब एक्सेप्टेंस मिली तब उन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर। ठीक है, दीज आर द थिंग्स, मेजर थिंग्स। तो वी कैन से नाउ, अब थ्री क्वेश्चंस हो गए हैं एंड पवर एंड शनाया ऑल्सो, श्रीकांत पीवी हैव टोल्ड सम राइट आंसर्स, बट अब एक रैपिड फायर क्विज होने वाला है थोड़ा टाइम में अभी। ठीक है, जो जो मैंने बताया वो सब आएंगे, या फिर आप थोड़ा इंटरव्यू अगर आप जानते हो तो वो आप अच्छे से क्लियर बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। विच ईयर ही, मीन एट व्हाट एज आई एम सेइंग, ठीक है, एट व्हाट एज ही स्टार्टेड प्लेइंग चेस एट प्रोफेशनली लेवल? यस पवर। 6 year। Yes, 6 years is the correct answer. Okay, very good. I hope other players also, Sir, as I know, it like was 5 year old. he, as per his autobiography book, ठीक है, मतलब he started playing at 5 years, but professionally I am saying he was started in tournament with 6 years. ठीक है, now when was Vishy Anand was awarded as Padma Shri Award? Yes, yes, Power. 1991. Okay, what is his age at that time? 1981 is first of all wrong answer. Okay, Sony, 9 you tell. 2014. 2014, no, very wrong answer. No issue. 1991. No, it's तुक्के मार रहे हो आप तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1987 is the correct answer. ठीक है, you can note down 1987. Okay, when Vishay Anand was born, a year. I have told you many times. 11 December Yes, 1969 11. maybe. Yes, 1969. Okay. Okay, who was Sushila? Um, Yes, anyone?
Okay, Sushila was the name of her mother. ठीक है? And he was a very good chess player also. ठीक है? Now, मजा आ रहा है थोड़ा बहुत क्विज में? ठीक है, अभी हम 2 क्वेश्चंस लास्ट में अब पूछूंगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द नेचुरल क्वेश्चंस, ठीक है? या फिर आप मुझे टॉपिक देते ना, आई विल आंसर दैट टॉपिक। Now, my last question is, second last question is, uh, what in which year Vishy Anand become Indian first Grandmaster? Okay, anyone can speak. Sorry, Unmute your mic. Indian Grandmaster. Yeah, 1991 first ना. Grandmaster. 1991. No, it's not a correct answer. It's 1988. Sir, Okay. 1988. Yes. Okay. How many? This is a very easy question. How many times has Vishy Anand been the world chess champion? 5 times. 5 years. Yes. Okay, 5 times. Very good. Okay. This is the very easy question. No issue. Now, what was Anand's childhood nickname due to his rapid playing speed? Sir, lightness something. Okay, Lightning Kid. ठीक है? That. Lightning Kid. Because he used to calculate too fast. People was saying him lightning speed. Okay. Now, Okay. which Indian civilian award did Anand receive in 2007? कौन सा अवार्ड मिला था in 2007? Okay, I'm Good. sharing you the option. Yes, anyone? Is Padma Bhushan is राजीव the गांधी correct खेल answer? रहा Sir, Yes. था. 1991 or 2. No, I'm asking for 2000. Okay, wait a minute. In which year did 2007. Anand first? Yes, wait a minute. Let me speak. ठीक है? In which year did Anand first achieve an ELO rating of 2800? Yes, Pavar. 2005 sir. 2006. Okay, no issue. Okay. And this is, I've told you now only. Who did Anand defeat to win 2000 FIDE World Chess Championship? Okay, no one. चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं. In 2022, Anand was elected as Deputy President of which organization? Again, I am saying Deputy President of which organization? Okay, options are All Indian Chess Federation. Second option is FIDE. Third option is Delhi Champion Open Championship and Tournament Management of India. Yes. Sir, first one. First first. All Indian Chess Federation. Sure. Yes, sir. No. FIDE is the correct answer. FIDE is the correct answer. He have made a president for FIDE, international organization. Okay. Okay, that's all. Thank you. And now you can tell me your doubts you are facing in the game. I am the National Pride Award winner, and I am a very good national player. Also, my leader setting is 2200. So I think I can guide you somewhere if you are lacking. So I can guide you. Take care. Yes. Anyone want to say something? Sir, why we feel dismotivated while game or before the game? Why we used to feel demotivated because you left the game. जब आपको गेम से लगाव होगा तभी आपको डिमोटिवेट फील होगा या फिर आप अगर आपने बहुत गंदा ब्लंडर किया है क्योंकि मेरे साथ होता है Before the game. सॉरी फॉर द गेम
Before the game. अच्छा, बिफोर द गेम आपको इतना नहीं, मुझे तो नहीं होता। आई डोंट नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट फील टू मच। ठीक है, बट ऐसा मेरा मानना है, जब मैं चेस गेम से पहले जाता हूँ तब मैं गाना सुनता हूँ, आरंभ है प्रचंड। ठीक है, आरंभ है प्रचंड, वो मैं गाना सुनता हूँ, उससे मुझे थोड़े से गूज बम्स आते हैं कि यस, उसमें तीन चार लाइनें हैं, उससे फिर मैं उस मोटिवेशन से वहां पे जाता हूँ और वहां पे गेम में खेलता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक चेस बेस इंडिया का सॉन्ग सुनता हूँ, शतरंज का कमाल। वो मैं ये दोनों गाने सुनता हूँ वाइल गोइंग टू हैव, जब भी मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। यस पवर। Sir, how to avoid mini mistakes in chess game? How to avoid many mistakes while practicing 1 hour every day? I think yes, 1 hour is sufficient for intermediate player. By practicing 1 hour puzzles, और मैंने एक बुक भी निकाली थी, योर 1 hour गाइड इन 2024, मिनी ई बुक जिसमें सिर्फ 10 पेजेस थे। तो उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि आपको 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स क्या करना है, फिर सेकेंड 5 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, ऐसे मैंने रीअरेंज किया था उस। तो आप उसे पढ़ सकते हैं, Amazon ई बुक में अवेलेबल है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, एनी अदर डाउट्स? यस पवन। यस पीवी। Sir, I am a leech. I am a player that who 16,000 rated player. How can I get to a chance to play with 90, at least 19,000 rated player? No, no, this is only possible when you are a good friend in leeches. ठीक है, if you are a there is a option become a friend and create a challenge। ठीक है, तब आप उस प्लेयर से you can fight, या फिर उससे आप चैलेंज कर सकते हैं। यस शनाया। Sir, how to practice alone, like when we don't want to use the phone to play online? You can do puzzles, there is a very good book, chess school 3B। आई मुझसे भी कभी कभी वो पजल्स नहीं बैठती है, दिस इज अ गुड लेवल, बट अगर इफ यू आर इंटरमीडिएट आई विल सजेस्ट चेस स्कूल 2A। तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो बुक इन जस्ट 50 to 100 रुपीज, आप प्रिंट करवा सकते हैं, एंड उसे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें मोर देन 10,000 पजल्स। ठीक है, तो कम से कम आपको 2-3 साल का काम हो जाएगा इन 200 रुपीज लास्ट। इससे मैक्सिमम से नहीं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा प्रिंटिंग कॉस्ट। ओके, एनी Sir, अदर डाउट? I have solved a woodpecker book, विच so it बुक? is helpful. Woodpecker method. ओके, ओके, आई डोंट नो, There's a आई नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, ऑल्सो फ्रॉम 1st March, 1st March is my birthday also। ठीक है, now from 1st March, FIDE had launched his new rating system also। There is a increase, the starting rating will be 1400, so all can, those who have FIDE rating or in 2024 they are planning to get a FIDE rating, it is a very good opportunity to get a good rating, because 1400 is of course a good rating, very good rating, but now it's in starting, so you can, when you can suggest yourself. Yes, any other doubts? I wanted to ask that when we play with higher rated player, we get Okay, how upgrade, much? like 1200 something, Only 1200, 12, only 1200. Sir, I have played with 1964 something rated player, Okay, FIDE rated player. I I have draw with them,
but before the game, I हम्म was afraid. Why it is? क्योंकि you used to I mean I have also done a psychology तो उसमें आई हैव लर्न कि जब भी आप अपने से ज्यादा एजुकेटेड पर्सन या फिर आई कैन से हायर रेटेड प्लेयर को देखते हो तो यू फील नर्वसनेस बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस ठीक है हार्मोन्स की वजह से होता है ऐसा आपको नर्वसनेस हो जाती है कि इससे तो मैं जीत ही नहीं सकती ऐसी फीलिंग आती है या अब तो क्या ही करना बट उसमें एक अप्रोच रखा करो कम से कम मैं चाहे हार भी जाऊं मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा इस गेम से मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना तो ये अप्रोच रखा करो इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच ऑल्सो यस पवन सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टूर्नामेंट जो 4-5 दिन में चालू ना बस हो? बस अब चुप रहो ओके कैन यू रिपीट द क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर अ टूर्नामेंट? मेन ये तो वही बात हो गई कि कल आपका फिजिक्स का एग्जाम है 100 मार्क्स एंड यू आर जस्ट गोइंग विद पासिंग मार्क्स ठीक है देखो चेस में इट्स नॉट अबाउट कि आपको रट्टाफिकेशन चाहिए या ओपनिंग्स को रटना है तो ऐसा नहीं है टू नाइट में यू कैन सॉल्व इन टू नाइट यू जस्ट स्लीप इन टू नाइट जस्ट यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है कि टू नाइट वो बहुत मेहनत करते हैं बट वो बहुत महसूस करते हैं मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसे हिंदी में बहुत लेजीनेस वो फील करते हैं और उसकी वजह से क्या है उनका पूरा गेम बिगड़ जाता है तो आपको एटलीस्ट टूर्नामेंट से पहले चाहे वो लोकल हो फिडे हो एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए एटलीस्ट ठीक है एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए चाहे आप रेगुलरली 2 घंटे भी सोते हो टूर्नामेंट से पहले एटलीस्ट आपको 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश कर पाओ और उससे पहले आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उससे पहले कभी भी गेम नहीं खेलो एक दिन पहले लोग क्या करते हैं ऑनलाइन गेम खेलते हैं कल मेरा टूर्नामेंट है देखते हैं मेरा स्कोर क्या है उसमें सारे हार जाएंगे गेम या फिर जीत जाएंगे क्या होता है आप अगर आप जीत जाते हो सारे गेम या फिर 90% 80% 70% से ज्यादा जीत जाते हो तो आपके अंदर अपना ही अलग कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि कल तो मैं तूफान मचा दूंगा पर कभी मचाते हो नहीं हार कर आ जाते हो या रो कर आ जाते हो कि अरे ये ब्लेंडर हो गया मिस्टेक हो गई अब क्या होगा या फिर जब आप हार जाते हो ऑनलाइन गेम तब बहुत ही डिमोटिवेट फील हो जाते हो कि कल जाने का मन ही नहीं करता अरे क्या करूंगा 2 घंटे ये 2 दिन हो जाएगा मतलब इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लूं ऐसा लगता था मुझे जब मैं छोटी क्लासेस में 6 7 में था 8 में था ठीक है एनी अदर डाउट्स नहीं कुछ डाउट्स नहीं है सर, इंडिया में फर्स्ट टूर्नामेंट कौन सी हुई थी? इंडिया में फर्स्ट टूर्नामेंट तो गूगल से पूछना पड़ेगा आई डोंट नो ठीक है बट 1 मिनट में फोन लाता हूँ इंडिया में फर्स्ट टूर्नामेंट कौन सा हुआ था ओके इट वाज रणजी ट्रॉफी also known as IDFC First Bank Ranji Trophy for chess local tournament फिर विश्वनाथन आनंद सर खेले थे उसमें? नहीं नहीं इतना इतना मुझे नहीं पता ठीक है वैसा नहीं मैं बहुत उनका क्लोज फ्रेंड हूँ पर उन्होंने यस कभी भी ऐसे इंटरव्यूज में अपने टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं बताया है बहुत रेयरली बताया है ठीक है आई यूज टू स्टडी और नहीं लूंगा ठीक है ओके ठीक है चलिए एनी अदर डाउट्स यस पीवी Sir, I don't know how to play with the black pieces against d4 opening. How to learn against d4 opening. ओके यू यूज टू सी कि देखो मैं पहले चेस बोर्ड अपना शेयर करता हूँ
ठीक है। आई होप माई लीचेस बोर्ड इज वेरी मच शेयरिंग। नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? Is it visible now? Okay. Yes, yes. Okay, for example, I played a normal opening e4 d4. तो उसके बाद आपको समझ नहीं आ पाता कि आप कैसे करते हो। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यूज टू ट्रेन विथ वाइट, जबकि 50-50 चांसेस होते हैं कुछ भी मिलने के लिए। तो आप अपना सेम स्ट्रक्चर खेल सकते हो जैसे व्हाइट से प्रिपेयर करते हो। मैं तो लंडन ही खेलता हूँ d4 से। ठीक है, ये मैंने इसमें एक फिडे प्लेयर के साथ ऐसे भी खेल रखा है, उसमें मैं जीता हूँ। ही वॉज 1400 1500। मैंने ऐसे भी जीता मैग्नी स्टाइल, ऐसे भी खेला है वो। ही वॉज शॉक्ड, अरे ये क्या बेवकूफी कर रहा है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कैलकुलेशन इतनी मैटर नहीं करती। ओपनिंग में कैलकुलेशन कुछ भी मैटर नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पीस एक्टिविटी मैटर करती है। हाँ, एक मूव मैंने वेस्ट कर दिया, दो मूव मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है, पर Sir, what was the उसमें मेरा ही planning? लॉस है। किसकी? You said that you have played King E7 before. इट वॉज फनी मूव। Okay, I thought क्योंकि there was आई something हैव planning. नो, देयर वाज नो प्लानिंग, इट वाज अ फनी मूव कि कभी कभी सी द प्लेयर वाज वेरी फैमिलियर टू मी। ठीक है, आई हैव प्लेड मोर देन 50 गेम्स विद हिम। तो मुझे उसका स्टाइल पता चल जाता है। ठीक है, आप अगर 10-20 गेम खेलते हो एक प्लेयर के साथ, तो आपको उसका स्टाइल पता चल जाता है। तो आई यूज टू नो हिम स्टाइल, उसका स्टाइल मुझे प्रॉपर अच्छे से पता था। एंड गेस आफ्टर दिस मूव, ठीक है, दिस वाज अ ब्लंडर आई थिंक, उसने ये खेला। अब फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब चलो बिठा लेते हैं। और उसके बाद फिर आई हैव डेवलप माय पीसेस, ऑल द पीसेस, और फिर मैं जीत गया। क्योंकि बिकॉज ही हैव ब्लंडर हिज नाइट, और उसका रिजाइन मार दिया था उसने इन जस्ट 3 मूव्स। ठीक है, आफ्टर ब्लंडरिंग हिज नाइट, आई थिंक इन द एंड गेम ओनली ही ब्लंडर नाइट। ठीक है, तो अपना गेम, अपना स्ट्रक्चर वाइट से जैसे प्रिपेयर करते हो, ब्लैक से भी वैसे प्रिपेयर किया करो, सेम टू सेम। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स 40। If you have any doubts, only one doubt can be acceptable, otherwise I am leaving. ठीक है, if you have any doubt you can speak. Shanaya, okay, I think PV uh, don't have any doubt right now because okay, no one. Okay, thank you for the class. ठीक है, आज तो रिपब्लिक डे था, आई थिंक कि सैटरडे, tomorrow also we have a class, but I think I will not attend that class. Maybe Rudran sir or Neerav sir will attend, or it can be postponed to Sunday or next Sunday. I will message you as soon as possible. ठीक है? Okay. Bye. Thank you. Happy Republic Day. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye.